we were doing exercise 20A and we had completed 1 to 4 sums. 1 to 3. Okay, let's start with the fourth sum. So in the fourth sum, you can see what is given here in the fourth sum. The area of an equilateral triangle is 36 root 3. Area is already given of an equilateral triangle. They have already given the area as 36 root 3 of an equilateral triangle. Okay. Find its perimeter. Perimeter क्या होता है? I had told you in the previous class. What is perimeter? Perimeter is sum of all sides. सारे sides को add करेंगे तो perimeter मिलता है. ठीक है? Now, one more important thing here is that it is an equilateral triangle. Equilateral triangle. What is the formula of area of equilateral triangle? Just now here it said it is root 3 upon 4 a square. Correct? Root 3 upon 4 a square. Where this capital A is the area and this small a is the side of the equilateral triangle. Okay, so in this sum they have already given you the area as 36 root 3. So area already दिया है 36 root 3. ठीक है, यहाँ पे root 3 upon 4 a square. We will solve this and find the value of a. So for maths, this root 3 will come in the denominator. Okay. What is the answer you are getting? Anyone got the answer already? Now what will happen? Cancellations. This root 3 and root 3 will cancel. So I am getting 36 into 4 equals a square. So 36 into 4 is how much? 144 is a square. So I will take square root on both sides. So a is how much? 12. A is 12. A means the side. The side is how much? 12. 12 मिल गया सबको side. But आपको perimeter ढूंढना था. Don't forget that. You had to find the perimeter of the triangle. Okay. So I will find the perimeter. What is perimeter? Sum of all sides. तीनों साइड को ऐड करेंगे. सी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है. इक्विलैटरल ट्रायंगल की स्पेशलिटी क्या है? दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. मुझे साइड क्या मिली है? 12 सेंटीमीटर. दैट मींस ऑल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर. ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके. तो पेरीमीटर क्या होगा? 12 प्लस 12 प्लस 12. करेक्ट. सो पेरीमीटर विल बी 36 सेंटीमीटर. करेक्ट परी. Okay, see here in this step plus minus sign will not come. Why it will not come? Because a, what is a? A is a side और side कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. किसी साइड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. इसलिए आपको प्लस माइनस नहीं पुट करना है. वो सिर्फ एक्सपांशंस में करना था. ठीक है. ओनली इन एक्सपांशंस, नॉट हियर. सो हियर यू विल ओनली टेक द पॉजिटिव. प्लस 12 ही लिखोगे खाली. Okay, in the question the unit is given as centimeter, so you have to use centimeter everywhere. Janam, it is an equilateral triangle और equilateral triangle का मतलब all sides are same. Equilateral triangle means all sides are same. That is why all sides are 12. Any doubts here?
Okay, let's do the next sum. Question number 5. What is the question? Find the area of an isosceles triangle. Isosceles triangle. See, isosceles means two sides are same. This is an isosceles triangle जहाँ पे दो sides same होती है. Two sides are same in an isosceles triangle. Okay. And they have given some information also. Let's name this triangle as A, B, and C. You also have to draw the diagram. Find the area of an isosceles triangle with perimeter is given. Perimeter is given as 36 centimeter. Okay, and base is 16 centimeter. Two information is given. Perimeter is 36 and base is 16 centimeter. Okay. First listen to what I am explaining and then copy. Okay. First listen and then copy. So perimeter 36, base is 16. Base is 16 means here this value is 16 centimeter. ये base है ना? This is the base of the triangle. Okay. Now see one thing. Isosceles triangle. You should know two sides are equal. Okay. So what I'll do is let AB equals AC equals X. Means ये जो दो equal sides है ना, ये दोनों, इसको मैं ले लेता हूँ X. दोनों सेम है ना, तो दोनों की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया? X. Correct? AB and AC are X. So what is perimeter? Perimeter क्या होता है? Perimeter means sum of all sides. ठीक है? Perimeter की वैल्यू दी है 36. Now what are the three sides here? 1, 2, 3. ये तीन sides है triangle की. ठीक है? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? X plus X plus 16. Correct? So 16 will come on the left hand side. 2x is equals to 36 minus 16. That is 20. So x क्या मिलेगा? Correct, Pari. X is 10 centimeters. Okay, x 10 centimeter मिल गया, मतलब मुझे ये दोनों sides मिल गए. 10 and 10. Hello, sir. Hello, sir. Just a second. The voice is not clear. I'll just get headphones. Yes, say. Sir, in this sum, we would have applied a Pythagoras theorem formula as we did in the previous one sum. How Pythagoras? Sir, the vertex bisects the base equally. Okay. So correct. The perpendicular from the vertex bisects the face. Okay. Then. So, sir, AB square equals AC square. AB square. See, the thing is, you have to understand one thing. Pythagoras के लिए, to apply Pythagoras, you should know at least two sides. दो पता होगी तो ही Pythagoras कर सकते हैं. Here you know only one side. We are going to use Pythagoras, but first we know only one side. ठीक है, तो हम one side से Pythagoras नहीं कर सकते.
ओके, अब एक और चीज, दैट they have given you the information that perimeter is 36. If they have given the perimeter is 36, आपको समझना है जो चीज देते हैं ना उसको आपको एज ए फर्स्ट स्टेप यूज करना होता है। जैसे पेरीमीटर 36 दिया है, मतलब इसका कुछ यूज है, और क्या यूज है, इसलिए मैंने स्टार्ट पेरीमीटर से किया सबको। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देते हैं वो कभी भी आपके लिए हिंट होती है कि आप फर्स्ट स्टेप कैसे करोगे सम का। तो यहाँ पे मुझे पेरीमीटर दिया 36, तो मैंने पेरीमीटर से ही सम को स्टार्ट किया। दैट पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, यहाँ पे मुझे ये मिल गया 10। अब मेरा मुझे क्या ढूंढना था, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, नाउ आइसोसेलेस का एरिया मैंने आपको कैसे फाइंड करना सिखाया है। Yes, who will tell isosceles area how to find? Yes, Yani. Sir, half into base into height. Okay, and what about the height? Where is the height here? Height. See, in the formulas I had drawn something. See that? Yes, sir. We have to draw AD. AD, okay. Yes, it is called as perpendicular. Yes. So we have to draw a perpendicular from A to BC, like this. Okay, and that is a step you have to write here. Draw AD perpendicular to BC. ओके, तो ये आपकी हाइट होगी। ठीक है, अब इसके पहले आप लोग एरिया फाइंड करो, उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आपके लिए। सबसे पहले एक और चीज देखो, दैट दिस वन साइड इज 10, अनदर साइड इज 10 एंड द लास्ट साइड इज 16। तो 10 10 16 तीनों साइड्स पता है आपको, करेक्ट? इस ट्राइंगल की आपको तीनों साइड्स पता है। तो कैन आई यूज हेरॉन्स फॉर्मूला हियर टू फाइंड द एरिया? हेरॉन्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब तीनों साइड्स पता होती है। ठीक है, तो क्या मैं हेरॉन्स फॉर्मूला से भी एरिया फाइंड कर सकता हूं? द आंसर इज यस, आई कैन यूज हेरॉन्स फॉर्मूला आल्सो हियर। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम आता है हमेशा। ठीक है, बट क्या है, हेरॉन्स फॉर्मूला थोड़ा लेंथी होता है, उसमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हेरॉन्स फॉर्मूला, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आए तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला अगर पॉसिबल है तो करो। ठीक है, अब यहाँ पे तो आई हैव ड्रॉन द हाइट। ठीक है, तो ये मेरी हाइट है। ओके, और मुझे क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। ठीक है, बट ये हाइट की वैल्यू नहीं पता है मुझे। नाउ हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हाइट? कैन एनीवन टेल मी? Yes, correct, Swayam. Sir, half into base into height. No, you have to find the height first. Height पता होगी तो हम एरिया ढूंढ सकते हैं। Correct, मान्य? Sir, that Heron's formula. No. So by using side is equal to a plus b plus c upon 2. No. That is not the formula of side. It's the formula of semi-perimeter. S stands for semi-perimeter. See, we have to first find the height, क्योंकि एरिया के लिए मुझे हाफ बेस इनटू हाइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे यस, करेक्ट, आई कैन सी नाउ जी, यानी करेक्ट आंसर। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो ये राइट 90 डिग्री है यहाँ पे। ओके, तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर डूइंग अ सम ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमेशा क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये ऐसे जो आधा ट्राइंगल होता है ना, उसमें पाइथागोरस अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो हाफ ट्राइंगल है, कैन यू सी दिस हाफ ट्राइंगल?
आई एम हाईलाइटिंग इट। हमेशा आप जब हाइट बनाते हो ना, जब आपने हाइट बनाया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, एंड इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल आई विल अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, तो अभी इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले ये जो 16 है ये पूरी साइड है BC। ओके, अगर ये पूरा 16 है तो ये 8 और 8 होगा, BD एंड DC। इसके लिए मैं बहुत बार स्टेटमेंट पहले भी बता चुका हूं और मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस। जो परपेंडिकुलर बनाते हैं वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इस बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में आई विल अप्लाई पाइथागोरस। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में? हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? टेल मी द हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? करेक्ट दर्श? यस अदर्स, टेल मी द हाइपोटेन्यूज। करेक्ट, very good, very good. Yes, so most of you have understood. Veeram wrong. See properly. हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 के सामने जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AC। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। ओके, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। सो AD I don't know, DC I know is 8 and AC I know is 10. So solve this. I got AD as 6 centimeter. Okay, then my last step will be to find the area. So area is half base into height. ठीक है, फुल ट्राइंगल का भी हम एरिया फाइंड करें तो हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब ट्राइंगल का बेस क्या है? दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल पूरा। ठीक है, जो 16 था ना ये है बेस ट्राइंगल का। क्वेश्चन में भी बताया था दैट बेस इज 16। ओके, सो बेस इज 16 एंड हाइट अभी मैंने फाइंड किया 6। वंस आई सॉल्व दिस, कैंसिलेशन ही कर लेते हैं यहाँ पे। 2 1 जा 2 8 जा 8 6 जा 48 एंड दिस इज एरिया, सो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या ऐसा भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, बोथ मीन्स द सेम। इसका और इसका मतलब सेम होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, कंप्लीट द सम। Then read the next question and try to draw the diagram.
Yes, have you tried? The diagram will remain the same diagram will come. See, the question says base of an isosceles triangle is 24. ठीक है, तो एक ट्रायंगल है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल. सी, बेस का मतलब क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में? एक बात समझो, दो साइड्स अगर इक्वल है तो जो थर्ड साइड होती है ना, जो इक्वल नहीं है, उसी को बेस बोलते हैं. ठीक है, इसे समझो, ये इक्वल वाली साइड को हम बेस नहीं बोल सकते. बेस कौन सी साइड होती है? जो इक्वल नहीं होती है. आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल है और जो थर्ड साइड है दैट इज कॉल्ड एज द बेस. ओके, ठीक है. तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. लेट्स नेम इट एज ABC. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. base is given as 24, so ये है 24 सेंटीमीटर. ओके, the area is 190. अच्छा, एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है. एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, देखो मैंने आपको पिछले सम में क्या बताया था, जो चीज आपको दी है क्वेश्चन में, आपको सम उसी से स्टार्ट करना है. वही आपका हिंट होता है. जैसे इसके प्रीवियस सम में पेरीमीटर दिया हुआ था. ओके, तो आई स्टार्टेड द सम विद पेरीमीटर फॉर्मूला. इन दिस सम दे हैव गिवन मी द एरिया, सो आई विल स्टार्ट द सम विद द एरिया फॉर्मूला. ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, एरिया इज ऑलरेडी गिवन एज 192. राजवीर, आई जस्ट सेड स्क्वायर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब सेम होता है. Base is 24 and height we don't know. Okay, so 2 1s are 2 12s are. So 192 upon 12 equals h. So h क्या मिल रहा है? (16 सेंटीमीटर. h क्या मिल रहा है? 16. अब हाइट है कहाँ पे? यहाँ पे डायग्राम में हाइट बनाया ही नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा हाइट. ठीक है, वी हैव टू मेक अ हाइट. मैं ग्रीन कलर से हाइट बना देता हूँ यहाँ पे. दिस इज माई हाइट. ओके, और जिसकी वैल्यू मुझे क्या मिली है? वैल्यू मिली है मुझे 16 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ व्हाट डू आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. ठीक है, पेरीमीटर ढूंढना है, मतलब मुझे तीनों साइड्स पता होनी चाहिए. ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स के वैल्यू को आप ऐड करो, दैट इज पेरीमीटर. ओके, तो इसमें ये जो दो साइड्स है AB एंड AC, दीज टू साइड्स दे आर इक्वल. आइसोसेलेस है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट AB इक्वल्स AC इक्वल्स x. ये भी x है, ये भी x है. ठीक है, करेक्ट मानिए, ये दोनों x हो गया. अब मुझे ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करूं x की वैल्यू? Correct, Darsh. Yes, others, how will I find the value of this x? Correct, Arya. Yes, others, I want all of you to give answer. Correct, Gia. Correct, Gia. Correct, Veeram. In triangle ADC, correct, Pari, and no, Anisha. And we are talking about finding x. Okay, so x कैसे find कर सकते हैं? We will take this triangle. Okay, here, firstly, you should know, I will have to write one statement here before writing this. क्या statement? That perpendicular bisects the base. ओके, तो अगर ये 24 है तो ये होगा 12 12, आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 12 12. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस.
अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ADC आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, उससे मुझे x मिलेगा। ओके, सो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। So 16 square plus 12 square equals AC square. So 256 plus 144 equals AC square. So 400 equals AC square. So AC is 20. AC क्या मिला? 20. मतलब AC मतलब ये X, ठीक है। दोनों साइड सेम है। करेक्ट एलिशा, करेक्ट स्वयं। सो AB और AC सेम है, तो दोनों 20 हो गए। करेक्ट, एक 20 मिला मतलब दूसरा भी 20 ही होगा, ठीक है। सी, ये मिल गया 20, तो ये भी 20 होगा बिकॉज बोथ आर सेम। ओके, अब मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। सो 1, 2 और 3, तीनों साइड्स को मैं ऐड करूंगा पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। टू फाइंड द पेरीमीटर आई विल ऐड ऑल द साइड्स। ओके, सो व्हाट इज पेरीमीटर? 20 plus 20 plus 24, that is 64 centimeter. Complete the sum. See, in question number 7, the given figure shows a right angle triangle ABC and an equilateral triangle BCD. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल BCD मतलब इधर से B से एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यह yes case what you are saying is correct. So यहाँ पे क्या दिया है? what important point is that BCD equilateral triangle है, ये बहुत ही important formation है। BCD is equilateral triangle, ठीक है। equilateral means all sides are same। थोड़ा मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ, something like this, this is D, okay। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस ट्राइंगल BCD, दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। दे हैव सेड इक्विलैटरल मींस ऑल साइड्स आर सेम। ओके, इक्विलैटरल मींस ऑल साइड्स आर सेम, ठीक है। अब और क्या इंफॉर्मेशन है? इन द डायग्राम यू कैन सी दैट BC is 8 centimeter, ओके। AC is 16 centimeter, ये पूरा AC is 16 centimeter, ठीक है। एंड देयर इज सम शेडेड रीजन हियर, सो मैं शेड कर देता हूँ इससे। ये है शेडेड रीजन हमारा, ठीक है। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं शेडेड रीजन का? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? हाउ कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? हाँ, सबसे पहले आई गॉट वन थिंग हियर दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है।
तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल में यू नो AC, आपको AC पता है, AC is 16 सेंटीमीटर एंड BC is 8 सेंटीमीटर, यू कैन फाइंड AB फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं, चलो। So in triangle ABC using Pythagoras theorem, okay, AC is the hypotenuse, ध्यान रखना, AB square plus BC square equals AC square, करेक्ट ना? ये hypotenuse है, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, this is a right angle triangle, okay, so AB square plus 8 square equals 16 square. Sixteen square is 256 minus 8 square is 64. What is the subtraction here? वन 192. अब 192 किसी का स्क्वायर है क्या? वन 192 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो अभी मतलब जो आंसर आने वाला है वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ओके, स्टिल लेट्स फाइंड। तो 192 का स्क्वायर रूट मुझे कैसे मिल सकता है? आई विल फैक्टराइज इट। 2 9 जा 6 जा 2 4 जा 8 जा 2 2 so AB is equal to root 192. So AB is equals to root 192 is what? 6 times 2 है और एक 3 है, ठीक है। So स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं? यू मेक पेयर्स, ये एक पेयर, ये 2, ये 3 और 3 के साथ कोई पेयर नहीं है, ठीक है। तो जिसका जिसका पेयर होता है दोज नंबर्स कैन कम आउट। तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 2 ये लास्ट वाला बाहर आ जाएगा और 3 रूट के अंदर ही रहेगा। सो व्हाट आंसर आई विल गेट? 8 रूट 3। मुझे क्या मिलेगा? AB 8 रूट 3। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, ओके, वी कैन डिस्कस इट। डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, अभी AB मिल गया, ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द शेडेड एरिया। तो कैन एनीवन टेल मी कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि हम शेडेड एरिया कैसे ढूंढ सकते हैं? मुझे ये वाला एरिया ढूंढना है, ये वाले पार्ट का, ये ट्रायंगल का, ठीक है। तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? क्या मैं डायरेक्टली इसका एरिया ढूंढ सकता हूँ? ये मुझे 8 रूट 3 मिला है, ओके। यस, there is one more information that BCD is equilateral triangle. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसके तीनों साइड सेम है, means this side and this side, all 3 sides are same, okay. तो मतलब अगर ये 8 है तो this will also be 8 and this will also be 8, okay. अब देखो आप कैसे इजीली इस शेडेड एरिया को फाइंड कर सकते हो, ओके।
नो स्वयं, नो. See what you have to do here is, आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है. एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, दिस बिगर ट्राइंगल, यू कैन सी दिस ABC, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा एक ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल वाला. व्हाट यू हैव टू डू इज, आप पहले इस बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, ठीक है, और उस एरिया में से आप इस छोटे ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करो. समझे? क्या करोगे आप? इस बड़े ट्राइंगल के एरिया में से, दिस बड़ा ट्राइंगल ABC, इसमें से यू विल सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ BCD. ओके, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, सी दिस बिगर ट्राइंगल, ओके, ये ऐसे ऐसे हमारे ट्राइंगल्स है, ठीक है. तो हमें ये वाला शेडेड एरिया फाइंड करना है. तो आप क्या करो, पूरा एरिया फाइंड करो और उसमें से इसको माइनस कर दो, ये वाले पार्ट को. तो व्हाट विल रिमेन इज दिस पार्ट, ठीक है. अच्छा, नाउ देयर इज वन मोर डाउट हियर. स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट करेक्ट, दिस AD इज आल्सो 8. बराबर है, पूरा 16 है AC, तो उसमें से CD माइनस करेंगे तो आई विल गेट AD एज 8. करेक्ट, दैट इज करेक्ट. बट आप जो ये ट्राइंगल है, कौन सा वाला जिसको मैंने शेड किया है, दिस ट्राइंगल, आप इसका एरिया डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, इवन दो यू नो ऑल 3 साइड्स. बट क्या है ना, एक साइड यहाँ पे रूट में दी हुई है 8√3, तो हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आप 8√3 को सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सर. देखो, आपको सेमी पेरीमीटर के लिए 8√3 + 8 + 8/2 करना पड़ेगा, सब डेसिमल में आंसर आएंगे, ठीक है. तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना विल नॉट बी पॉसिबल, नॉट बी फीजिबल आल्सो. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल, और उस बिगर में से हम इक्विलैटरल के एरिया को माइनस करेंगे, ठीक है. तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा. ओके, तो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. अच्छा, ABC इज व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल? ABC कौन सा टाइप का ट्राइंगल है? ABC is a right angle triangle. You can see 90 degree here. ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं हाइट और बेस किसको लूंगा? मैंने आपको समझाया था, इन राइट एंगल ट्राइंगल जो हाइपोटेन्यूज होता है उसको यूज नहीं करना है, उसके अलावा जो दो साइड्स है दे आर द बेस एंड द हाइट. ओके, तो इन यहाँ पे दिस विल बी द हाइट एंड दिस विल बी द बेस. ओके, तो हाइट क्या है? 8√3 और बेस क्या है? 8 सेंटीमीटर. ठीक है, सो 2 1s are 2 4s are, this will be 32√3. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 32√3. ठीक है, मतलब मैंने फुल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया 32√3. नाउ आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ये वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करता हूं. BDC, which is a equilateral triangle. So area of triangle BDC, right here equilateral triangle. Area of equilateral triangle BDC. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 A². करेक्ट. सो √3/4 A मतलब साइड. ठीक है, तो क्या है साइड यहाँ पे? इस ट्राइंगल की साइड क्या है? इस ट्राइंगल की साइड है 8 सेंटीमीटर. ओके, सो 8². What is 8²? 64. So 4 1s are 4 1s are 6 are. So मुझे आंसर मिला 16√3.
ठीक है ना। मतलब देखो, मुझे फुल ट्राइंगल का एरिया, ये जो पूरा ट्राइंगल था पूरा, उसका एरिया मिला था 32। ठीक है, और जो BDC है, जो इतना पार्ट है, ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे, इसका एरिया मिला 16√3। तो अभी शेडेड कैसे मिलेगा? शेडेड एरिया, आई विल डू इट हियर। Write the names first. Area of triangle ABC minus area of triangle BDC. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ABC का एरिया क्या था? 32√3। BDC का एरिया क्या था? 16√3। देखो यहाँ पे मिला है 16√3। So 32 minus 16 will give me 16√3. And what is the value of √3? In the last class I told you you should know two values, √2 and √3। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो √3 is 1.732। √3 is 1.732। Okay, so multiply this and tell me the answer. Highest case you can name them as even it. Now find this, multiply 16 into 1.732, you will get the answer. ओके, तो वेरी इन शॉर्ट में मैं इस सम को वापस एक बार बताऊं आपको, अगर एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये शेडेड पार्ट ढूंढना था। ठीक है, यू हैव टू फाइंड, सो आपको ये शेडेड एरिया फाइंड करना था। ठीक है, तो टू फाइंड द शेडेड एरिया हमने क्या किया, हमने पहले इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, इस फुल ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया। ठीक है, और इस फुल एरिया में से हमने ये जो इतना पार्ट है, एरिया ऑफ दिस पार्ट, इसको हमने सबट्रैक्ट किया। ठीक है, तो पहले फुल एरिया फाइंड किया, देखो ये है फुल एरिया, और उसमें से इस पार्ट को सबट्रैक्ट किया, तो हमें किसका एरिया मिल गया? वी फाउंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ओके, ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
this is how the diagram is given. And what you have to find the area and the perimeter of the quadrilateral. So what you have to find here is area and perimeter of the quadrilateral. Which quadrilateral? A B C D. A B C D मतलब देखो ये इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो दिस विल फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया आपको फाइंड करना है कि इसके अंदर क्या एरिया है इसका. ठीक है, एंड इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है. इसका पेरीमीटर क्या होगा? इन चारों साइड्स को ऐड करेंगे 1 2 3 4. ठीक है, तो मतलब मुझे दो चीजें ढूंढनी है. मुझे दोनों का एरिया भी ढूंढना है एंड चारों साइड्स की वैल्यू भी ढूंढनी है. ठीक है, आई हैव टू फाइंड बोथ द थिंग्स. ठीक है, let's see what information is given. They have said that AB is 8 centimeter, AD is 10 centimeter, BD is 12 centimeter, DC is 13 centimeter, and this angle is 90 degrees. Okay, ठीक है. Can you find the side BC? How can we find side BC? Pythagoras theorem, correct? We will find side BC by using Pythagoras theorem. Okay. So in triangle BDC, using Pythagoras theorem. Okay, so BD square plus BC square equals CD square. Okay, what is BD? 12 square. BC I don't know. CD is the hypotenuse. देखो hypotenuse identify करना बहुत जरूरी है. 90 के सामने hypotenuse होता है. Okay, देखो ये 90 है, इसके सामने ये hypotenuse है. So you got BC as 5 centimeter. ठीक है, अब पेरीमीटर तो मिल जाएगा. ओके, आप चाहिए तो फाइंड भी कर सकते हो पहले पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स सारे साइड्स को ऐड करना है. सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. ओके, सो 8 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 10. What is the perimeter you are getting? पेरीमीटर क्या मिल रहा है ऐड करने के बाद?
36 centimeter. We are getting the perimeter as 36 centimeter. अब मुझे एरिया ढूंढना है. I'll erase this. अब देखो ये जो पूरा क्वाड्रिलैटरल है, दिस एंटायर क्वाड्रिलैटरल इज मेड अप ऑफ, ये जो क्वाड्रिलैटरल है पूरा, इट इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स. ठीक है, ये 2 ट्राइंगल का बना हुआ है. एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है. करेक्ट, ये 2 ट्राइंगल्स का बना हुआ है. तो इन दोनों के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया मिल जाएगा. आई विल ऐड द एरियाज ऑफ दिस एंड दिस. करेक्ट, तो 1 बाय 1 इनका एरिया फाइंड करते हैं. समझ रही है बात? देखो ये और ये, these two. Let us find the area of these two. So पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. तो ABD का एरिया कैसे मिल सकता है? Which formula should I use ABD के एरिया के लिए? What type of triangle is this? Yes, can anyone tell me? कैसे ढूंढूं मैं ABD का एरिया? करेक्ट वीरम. राइट एंगल कहाँ पे है यहाँ पे? ABD में कोई राइट एंगल है? नहीं है. ABD में कोई राइट एंगल नहीं है. ABD में कोई हाइट भी नहीं है. कोई हाइट नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता है. ऑल 3 साइड्स आर नोन. अगर ये तीनों साइड्स पता है तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, और देखो ये कोई स्पेशल ट्राइंगल ही नहीं है. ये ना राइट एंगल ट्राइंगल है, ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ना ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है. दिस इज जस्ट अ स्केलिन ट्राइंगल. तो हमें ऑल 3 साइड्स आर नोन. ठीक है, तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. तो उसके लिए पहले सेमी पेरीमीटर ढूंढना होता है. व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? a plus b plus c upon 2. So 10 plus 12 plus 8 upon 2. So क्या मिलेगा आंसर सेमी पेरीमीटर? So S is 15. A, B, C. Sides are 10, 12 and 8. So 15 minus 10, 15 minus 12, 15 minus 8. So 15 minus 10 is 5. 15 minus 12, ये minus 12 है. 3 and 15 minus 8 is 7. 15 को लिख दो 5 into 3.
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सी यहाँ पे जब आप पेयर्स बनाओगे तो 2 5 है और 2 3 है, लेकिन ये एक 7 है अकेला यहाँ पे, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। सी 5 5 विल मेक अ पेयर, 3 3 विल मेक अ पेयर, बट 7 विल नॉट मेक अ पेयर। ठीक है, ये एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ गया, बट ये 7 रूट के अंदर ही रहेगा बिकॉज 7 डज नॉट हैव अ पेयर। सो एरिया क्या मिलेगा, 15 रूट 7। एरिया विल बी 15 रूट 7। तो बस ऐसे ही रहने दो इसको फिलहाल, एरिया इज 15 रूट 7। नाउ द अदर ट्राइंगल, अदर ट्राइंगल क्या है, BDC या DBC। DBC ट्राइंगल है। अब DBC कोई स्पेशल टाइप का ट्राइंगल है क्या? ऑब्जर्व एंड टेल मी व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज DBC। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलिस नहीं है जैनम, हाउ इज आइसोसेलिस? दो साइड्स इक्वल है क्या इसकी? दो साइड्स इक्वल दिख रही है कोई भी, 12 5 और 13 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट, हाफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ। अच्छा, हु विल टेल मी यहाँ पे बेस और हाइट में क्या लूं? यस, श्रेय। श्रेय, करेक्ट। परी, यानी, जिया, करेक्ट। यस, कैस। Sir, base will be 5 centimeter and height would be 13 centimeter. Why 13? Base 5 correct है। Tell me what is the hypotenuse in this triangle? Uh, Sir, angle DBC, right? हाँ, Sir, 13. 13 अगर hypotenuse है तो how can it be the height? मैंने आपको बताया hypotenuse is never the height or the base. So अगर आपने इसको base लिया है तो this will be the height. ये होगा आपका height। देखो बात को ध्यान से समझो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, इसको भूल जाओ। दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द हाइट। ठीक है, तो मैं अच्छे से बताता हूँ यहाँ पे। सी दिस, इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस, ओके, सो ये तो हाइपो है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज को बेस या हाइट नहीं लेना है, ये हो जाएगा आपका हाइट और ये हो जाएगा आपका बेस। ओके, इस बात को ध्यान रखो, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर। So base is 5 and height is 12. So 12, 2 1s are 6 are 6 5s are 30. So area क्या मिलेगा मुझे? 30 centimeter square. Correct? All of you are getting the answer as 30. So अभी दोनों का एरिया मिल गया। एक का एरिया मिला 15 रूट 7 और एक का एरिया मिला 30। ठीक है? Now we will add them. So area of quadrilateral will be what? Area of triangle ABD plus area of triangle BDC, that is 15 root 7 plus 30। ठीक है, अब आप इसको ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये नंबर के साथ रूट 7 है और ये एक सिंगल नंबर है। यू कैन नॉट ऐड 15 एंड 30, यू कैन नॉट ऐड 15 एंड 30। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे रूट 7 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी।
Do you remember how you used to find the square roots? Square root कैसे find करते थे last year? Can you find the square root of 7? जैसे करते थे 2 2s are 4, remainder is 3. फिर 2 + 2 हो जाता था 4 dash. Here you take a point. याद है स्क्वायर रूट्स कैसे करते थे? सो यहाँ पे 2 + 2 4 एंड यहाँ पे डेसिमल डाला है, मीन्स आपको 2 zeros ऐड करने हैं, ठीक है? सो यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे? द नंबर विच यू गेस, यू मल्टीप्लाई इट विद द सेम नंबर. समझो आपने गेस किया 5, तो 45 × 5 विल गिव मी 225, जो इससे छोटा है 300 से. तो लेट्स चेक वन मोर नंबर. 46 × 6 ट्राई करते हैं. हाँ, दिस इज द क्लोजेस्ट आई थिंक. 47 अगर करेंगे, 47 × 7, तो इट विल गो बियॉन्ड 300. 329 हो जाता है. So 46 × 6 will give me 276. This will be 240. 0 0. 46 + 6 is 552 dash. And then you further solve it. आप इसको आगे अगर solve करोगे तो you will get 4 भी मिलेगा आपको यहाँ पे. ठीक है, देखो अभी डिवीजन करने से अच्छा है, ये इतना रूट करने से अच्छा है, मतलब क्योंकि अगर आपको रूट याद है तो अच्छी बात है, बट आप ना इसकी वैल्यू को याद ही रख लो, दैट इट इज √7 = 2.64. ये याद रखना ज्यादा इजी है. ये पूरा सॉल्व करोगे एग्जाम में तो इट विल टेक टाइम. सो अगर बेटर है आपको याद रहे, बिकॉज ज्यादा नंबर्स नहीं आएंगे. √2, √3, ज्यादा से ज्यादा √5 और √7, दैट्स इट. उसके ऊपर का कोई नंबर नहीं आएगा. Multiply this 15 × 2.64. This will be your answer. Area of the quadrilateral. Okay. Any doubts in this sum? You can raise your hand and ask me. This will be the last sum for today. Once you have copied the sum, goodbye to all of you. Take care. You can leave the meeting and attend your next lecture. If any doubts, you can raise your hand.